So, hello dear students and welcome to the class. क्या करने वाले हैं? So, in this video we are going to see the solution of AIT 1 chemistry video solution, right? So, इसमें हम लोग सारा chemistry का जो भी solution है, we are going to see this, right? So, this is going to be a very interesting class for all of you. जिन बच्चों ने भी डाउट फेस किया होगा AIT 1 में कुछ केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, उसका हम यहाँ पे पूरे अच्छे से सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है? So, let's start with the first question. So, the first question is molar mass of an unknown species X2 is found to be 46 gram per mole. What will be its molecular mass, right? So here molar mass is given and they're asking what is molecular mass, right? So basically there is not much difference between these two, molar mass and molecular mass. Basically molar mass is for mass of 1 mole of substance. Similarly molecular mass is the mass of one molecule of substance, right? So if I'm talking about numerically, so numerically their value remains same. Numerically values में कोई फर्क नहीं पड़ता है, right? Only the unit is difference. So the unit of molecular mass is AMU. So the correct answer here is 46 AMU, because here 46 gram per mole is given in terms of mole. But in case of molecular mass, the unit become AMU, atomic mass unit. So the correct answer is option A. Right. Now, move to the next question, question number 32. Which of the following contain the greatest number of moles? So we have 32 gram of O2, 1 gram of H2, 24 gram of O3, and all of the same number of moles, right? So we need to calculate which of the following contain the greatest number of mole. So we know now how to calculate mole. So basically we calculate mole is equal to mass divided by molecular mass, right? So when we divide mass by molecular mass, we easily calculate the number of moles. So in the first option, we have 32 gram of O2. So 32 gram is mass and molecular mass of O2 is again 32. So this comes out to be 1 mole only. Similarly, in case of hydrogen, so we have a 1 gram. And what is the molecular mass of hydrogen? That is 1. So H2 का कितना हुआ? 2. So it comes out to be 0.5 mole. And next we have 24 gram of O3. So we have a 24 and molecular mass of O3 comes out to be that is 32 plus 16 और कर दो, ठीक है? So it comes out to be 48, right? So 48. So it comes out to be again 0.5 moles. So clearly we can see that the number of moles in oxygen is more. ठीक है? कितना आया? 1 mole. So we can say that option A is absolutely correct. I hope many of you did the correct answer for this question because it's a very simple question. ठीक है? चलो. Now, move to the next question. What they are asking, among the below sets of quantum number, which one is not possible for an electron? Right. And the quantum numbers are given in the order N, L, M, S respectively. So they're asking which is not possible. So the value of A is 4. So L become 3. Yes, absolutely, because L is N minus 1. So it will be 3. Okay. ML will be minus 2, minus 1, 0, 1, and 2. So this is the correct one. This is the wrong. Why? Because N and L values cannot be same. L is always less than 1, right? If you compare with the N. So this is incorrect value. In this option, they're asking which is the not possible for an electron. So same value of N and L are not possible for electrons. So we can say that option B is absolutely incorrect. Okay. Now, move to question number 34. The state of hybridization of the central atom and the number of lone pairs over the central atom in POCl3 are. So they are asking the state of hybridization you need to calculate and the number of lone pairs. So first of all, let's see the diagram of POCl3. ठीक है, किस तरीके से structures बनाते हैं POCl3 का. So we have P double bond O and 3Cl we have, that is 1Cl, 2Cl and 3Cl. So the hybridization is how to calculate hybridization. We all know we can easily calculate hybridization just by number of sigma bond plus lone pair of electrons. So here the number of sigma bond 1, 2, 3 and 4, right? So total number of sigma bond here is 4 only, right? And how many lone pair beta? 0 lone pair. So 4 means sp3. So its hybridization is sp3 and it contains 0 lone pair, no lone pair on this, right? Because phosphorus having 5 valence electron and यहाँ पे 5 valency 5 bond बन चुका है. So sp3 hybridization हो गया and 0 lone pair, right? Now move to the next question. This question number 36.
So in this question, they're asking N2 plus 3H2, 2NH3 at 500 degrees Celsius, the value of Kp is given. When the partial pressure is measured in the atmosphere, the corresponding value of Kc. So we all know the relationship between Kp and Kc. What is the relation, beta? Kp is equal to Kc RT की power delta Ng. So first of all, you need to calculate this delta Ng. So delta Ng is nothing but product mole minus reactant mole. Number of mole of product minus number of mole of reactant only for the gaseous molecule, right? So in product side, we have 2 mole of NH3, so 2. In reactant side, we have 1 mole of N2 and 3 mole of H2, that is 4. So 2 minus 4, that comes out to be minus 2. So just put the value here, minus 2. So here we have a Kc. So Kc we need to calculate now. So Kc comes out to be Kp divided by RT power delta Ng. Now, what is Kp? So Kp is 1.44 into 10 की power minus 5. What is R beta? We all know 0.0821. What is temperature? That is 500. It means in Kelvin, it is 773 Kelvin. And the power is minus 2. So this is the correct answer. So which of the following is the correct beta? That is option B. So we can say that option B is absolutely correct, right? So option B is absolutely correct answer. Okay? Chalo. Now, move to the next question, question number 37. During an adiabatic expansion, a gas obey T raised to the power 5 is equal to K upon V2, where K is a constant. The gas must be. So, which type of gas this is? So, obviously, how will you define the nature of gas, whether it is a monoatomic, diatomic, or polyatomic, right? So, here it's a very simple thing. We know that is V2 and T ki power 5 is equal to constant. This is given in this question, right? Now, so we can write as, how will you write this? So we can write as V raised to the power 2, T raised to the power 5 is equal to constant. Now, for the adiabatic process, we all know this thing. What we know, beta? For adiabatic process, we know the expression for adiabatic process. So for the adiabatic process, we all know PV gamma is equal to constant, right? PV gamma is equal to constant. So how will you write this in such case? So we can write as PV gamma is equal to constant. It means at place of P, we can write as T by V, right? And this is V gamma is equal to constant. So we can say that where V and this will become T1 gamma minus 1 and this comes out to be constant. So we can say that 1 upon gamma minus 1 is equal to 5 by 2, right? So here gamma comes out to be 7 by 5 and we can say that 7 by 5 means it is a diatomic gases. So which type gas this is? This is diatomic gases, right? So we can write as diatomic gases. How will you do this? Basically, we divide this equation here by 2 and here also by 2, right? So this become V T की पावर 5 by 2. तो इस तरीके से ये हम लोगों का बेसिकली हो गया। ठीक है ना, उसके बाद हमने बस क्या किया है, वी टी की पावर टी बाई टू जस्ट इक्वेट कर दिया, सो वी गेट द वैल्यू। ठीक है, तो आंसर कम्स आउट टू बी डायटोमिक। ठीक है, चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 38? द एन फैक्टर फॉर SO2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो वी हैव दिस रिएक्शन Na2Cr2O7 plus 3SO2 plus 2SO4 and gives us Na2SO4 and Cr2SO4 thrice plus H2O. You have to calculate the n factor. So here n factor means what? कि कितना number of electron का transfer यहाँ पे हो रहा है. So here we have SO2. So in SO2 basically we have how many electrons? That is 4 electrons. In SO4, here we have SO4. So in SO4, we have a 6. So how will you write this basically now? Dekho. So basically we can write as here we have SO2. This SO2 converted into SO4 twice negative and 2 electron का यहाँ पे lose हुआ. So here the oxidation state of sulfur is +4, right? Because oxygen having -2, so sulfur having +4. Now, here also oxidation state of sulfur comes out to be 6 because oxygen having -2 for the 8, -8 plus 2, it comes out to be 6. So here the oxidation number is 6. So net number of transfer of electron takes place is 2.
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2। तो एन फैक्टर भी यहाँ पे कितना आ गया बेटा हम लोगों का, 2 निकल के आ गया। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question number 39. What they're asking when the quantity of electricity is passed through copper sulfate solution, 0.16 gram of copper get deposited. If the same quantity of electricity is passed through the acid diluted water, then the volume of H2 liberated at STP will be. So this is from the Faraday second law. कौन से लॉ पे क्वेश्चन है ये? Faraday second law पे क्वेश्चन है। तो क्या कहता था Faraday का सेकंड लॉ, याद है आपको? तो सिंपल सा लॉ था, दैट इज वेट, ठीक है, यानी मैं पहले कॉपर का ले लेता हूँ, वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ H2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, and here we have a equivalent weight of H2. It's a very simple law, right? So we all know that we need to calculate the weight of hydrogen first, right? So weight of copper is given, I guess, 0.16 gram, है ना, 0.16 gram. So this is 0.16 gram. Weight of hydrogen we have to calculate. Equivalent weight of copper comes out to be, molecular mass कितना होता है, 63.5, 64 given है इसमें. चार्ज कितना होता है इस पे, 2, और हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, पता है, 1/1, तो 1 ही हो गया। तो यहाँ से आप सबसे पहले निकालो WH2, दैट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन। सो वेट ऑफ हाइड्रोजन कम्स आउट टू बी 5 × 10⁻³ ग्राम। तो दिस इज द वेट ऑफ hydrogen. Now in this question they're asking the volume of H2 liberated at STP. So how will you calculate volume? Simple mole concept का concept है कि किस तरीके से वेट को वॉल्यूम में लगा दोगे, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ H2 पूछा है एसटीपी पे। किस पे पूछा है, एसटीपी पे। तो हम सबको पता है कैसे निकल जाएगा, तो ये वैल्यूज आ गया 5 × 10⁻³ एंड दिस इज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये, दैट इज 2, और मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता है ना 22,400 ml होता है, तो 22,400 सीसी से कर दिया, तो इट्स कम्स आउट टू बी 56 सीसी, राइट? तो 56 सीसी जो है हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 56 सेंटीमीटर क्यूब। तो 56 सेंटीमीटर क्यूब जो है हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? चलो, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर इन विच द ओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन द फॉलोइंग इज। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है जिसमें ओ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो वी हैव O2, राइट, वी हैव O2, वी हैव O3 एंड वी हैव H2O2, राइट? सो H2O2, सबसे पहले मैं बात करूं O3 में ना, O3, तो O3 में होता है रेजोनेंस, ठीक है, O3 में क्या होता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के चलते कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ना तो पार्शियल डबल होता है, मतलब ना तो कम्प्लीटली डबल होता है, ना कम्प्लीटली सिंगल होता है, पार्शियल डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब लगा लो 1.5 के करीब है। ठीक है, फिर अगर मैं O2 की बात करूं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्योरली डबल बॉन्ड होता है, और H2O2 में भी वही कहानी है कि यहाँ पे क्या होता है, O और O के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, हमें पता है ना, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी। तो सबसे बड़ा जो होगा वो परऑक्साइड, क्योंकि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे बड़ा तो H2O2 हो गया, डन। उसके बाद कौन होगा, तो उसके बाद होगा आपका ये, क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, 1.5 है इसका, और ये तो पूरा डबल बॉन्ड है ना, ये रेजोनेंस के चलते ये 1.5 के करीब है, ना तो प्योरली डबल है ना प्योरली सिंगल है, तो वी कैन से दैट सबसे बड़ा तो होगा H2O2, उसके बाद आएगा O3 और सबसे छोटा होगा O2। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। 41 पे चलते हैं, क्या बोलता है कि आपको दे रखा है इसके लिए रीजेंट बताइए फॉर द कन्वर्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सिन एडिशन कराना है ना, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन एंड लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन एंड लिंडलार कैटलिस्ट गिव द सिन एडिशन, while alkynes can be selectively reduced to transalkene using LiNH3 और NaNH3, है ना? ये दोनों हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या है, तो ये देखो, ये है पीएच इधर, ये है पीएच इधर, यानी ये ट्रांस है, ये एच इधर एच इधर, दोनों एक साइड होता है तो सिर्फ अपोजिट होता है तो ट्रांस। तो क्या आंसर होगा इसका बेटा, सिंपल सा आंसर, दैट इज LiNH3, राइट, LiNH3, बिकॉज ट्रांस एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो LiNH3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 42।
42 क्या कहता है आपसे? कह रहा है इन एलीन C3H4 द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, आर के एलीन में आप बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि वो एलीन का स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। तो एलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? सिंपल सा स्ट्रक्चर, दैट इज C डबल बॉन्ड C, फिर से डबल बॉन्ड C, दो डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, ठीक है। और ये आपका रहा बेटा H2 और ये रहा एक H2। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो कार्बन एटम्स ऑफ एलीन हैव sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो कैसे, ये वाला कार्बन देखो ध्यान से, तो दो हाइड्रोजन का बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना हो गया? तीन सिग्मा बॉन्ड हो गया ना, और एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ये वाला जो कार्बन है और जो ये वाला कार्बन है सेम ही है। तो तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? sp2। और अंदर वाला देखो, एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक सिग्मा बॉन्ड उधर, यानी सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड। तो दो सिग्मा बॉन्ड जीरो लोन पेयर, मतलब ये कितना हो गया? सिर्फ sp। तो sp2 और sp सिर्फ इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो एलीन हमारा सिर्फ sp2 और sp का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द गिवन कंपाउंड, कि ये गिवन कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रुप एक साइड है, यहाँ पे ग्रुप अपोजिट हो गए हैं। तो सिस और ट्रांस किस में आते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बेटा, मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग E2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रू, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का जो होता है उसके लिए ट्रू है। तो क्या बोला है? द रेट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है? द रेट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, या द CH बॉन्ड एंड द CX बॉन्ड हैलोजन बॉन्ड्स आर ब्रेकन इन द सेम स्टेप, या अल्काइल क्लोराइड जनरली फास्टर रिएक्ट देन अल्काइल ब्रोमाइड। कौन सी बात सही है? तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें जो CH बॉन्ड एंड द CX बॉन्ड होता है ना, आर ब्रोकन इन द सेम स्टेप इन द E2 रिएक्शन। यही सबसे मेन कहानी होती है जो हमें इसके लिए याद रखना होता है, कि CH बॉन्ड और CX बॉन्ड दोनों एक ही समय पे टूटता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके लिए जो C है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का क्लोज कंटेनर के अंदर, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, आपको बताना है, या मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, है ना। यानी क्वांटिटी और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो सिर्फ क्या बचा? टेम्परेचर, यानी ओनली वन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है 47 क्वेश्चन आपसे? 47 क्वेश्चन ये कह रहा है कि if the osmotic pressure of 1 molar aqueous solution of H2SO4 at 500 Kelvin is 90.2 atm, then value of Ka of H2SO4, तो आपको Ka की वैल्यू इसके लिए निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप Ka की वैल्यू? तो देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरीके से यूज करना है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये H2SO4 है, कैसे डिसोसिएट होगा बेटा ये? तो H2SO4 टूटता है 2H+ एंड SO4 ट्वाइस नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। मैं मान के चलता हूँ इनिशियली जब टाइम जीरो था, तो जब टाइम जीरो था तो इसका अमाउंट वन था, इसका अमाउंट कितना कितना रहा होगा? जीरो। कुछ समय के बाद एट टी इज इक्वल टू, जब कुछ समय हुआ होगा, तो इसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा हो गया। तो इसका कितना हुआ होगा बेटा? 2 मोल है तो 2 अल्फा हो गया होगा, और इसका कितना होगा? 1 मोल है तो अल्फा हो गया। 1 मोल से 1 मोल, वहां 2 बन रहा है तो 2 अल्फा हो गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से अगर मैं निकालूं टोटल नंबर ऑफ, तो आई कितना आएगा टोटल? तो कितना डिसोसिएशन हो रहा है टोटल फाइनली अगर आप देखो तो देखो, 1 - अल्फा ले लो, प्लस आप ले लो 2 अल्फा, और प्लस एक और अल्फा, यानी यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ गई? 1 + 2 अल्फा, यानी आई की वैल्यू आ गई है 1 + 2 अल्फा। अब देखो, अब क्या करना है। अब पता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है? I × C × R × T। अब आपको सारी वैल्यूज बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है? 90.2। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह वैल्यू पुट कर दो 90.2। आई की जगह क्या पुट करोगे? 1 + 2 × अल्फा, तो अल्फा रहा। सी कितना है भाई बताओ? कंसंट्रेशन दे रखा है क्या? तो 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन बोला है ना, तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा? तो साफ साफ दे रखा है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, ठीक है। अब बताओ आर कितना है? तो 0.082। और टेम्परेचर कितना बोला हुआ है? टेम्परेचर बोला है
चलो टेम्परेचर ऐसे क्वेश्चन में जब 500 केल्विन गिवन तो है, 500 केल्विन। तो यहाँ से क्या अननोन है, सिर्फ अल्फा। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका अल्फा निकल के आ जाएगा 0.6। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया, 0.6। नाउ अब आप इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हो, कैसे? क्योंकि हम सबको पता है के को निकालने का फॉर्मूला कैसे निकलता है के। तो के का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपने लिया होगा H+, इसकी पावर 2 कर दो, है ना, जैसे इक्विलिब्रियम में निकालते थे। SO4 ट्वाइस नेगेटिव, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, H2SO4 जो कि डिसोसिएट हुआ था। अब इन सबकी वैल्यूज देखो आप कैसे कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको लिखना है H+ की वैल्यू। तो H+ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 अल्फा था ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा का मतलब 2 × 0.6। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो गई, 2। SO4 की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ अल्फा, यानी ये सिर्फ कितना हो जाएगा, 0.6, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, H2SO4 जो कि कितना था, 1 - अल्फा, यानी 1 - 0.6। बस इसी को सॉल्व करना है बेटा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू गेट द वैल्यू 2.16। ये सॉल्व करना मैं आप पे छोड़ता हूँ, सीधा सॉल्व कर लोगे। तो 2.16 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया होगा सबको। बता दो, एक बार कंफर्म करो। ठीक है, चलो। ओके, अब हम 48 देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ सुक्रोज, बोला है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर so as to get a solution which has a difference of 103 डिग्री सेल्सियस between the boiling point and the freezing point। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबको पता है भाई बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, टीबी प्लस, टीबी प्लस क्या आ जाएगा, दैट इज टी नहीं, माइनस करो ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, और उसी तरीके से इसको हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरीके से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, अब देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, ध्यान से समझना थोड़ा, कि गिवन दैट कि जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना हो जाए, 103 डिग्री के बराबर हो जाए। ठीक है, 103 डिग्री के बराबर हो जाए, है ना। यानी गिवन दैट में क्या है हमारा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो गिवन में हम ये कह सकते हैं कि, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना थोड़ा सा इसको। ठीक है, ये हम लोगों को गिवन डेटा है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ऊपर, गिवन। ठीक है, तो गिवन डेटा में हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं टीबी नॉट की बात करूं, है ना, यहाँ से बेटा अगर मैं टीबी नॉट निकालूं तो टीबी नॉट कितना आएगा, साफ साफ बताओ। देखो, तो टीबी नॉट कितना हो जाएगा, अगर टीबी और टीबी नॉट की बात करो तो टीबी जो है वो हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, यही होगा, टीबी की वैल्यू बोल रहा हूँ, है ना। उसी तरीके से अगर मैं टीएफ की वैल्यू निकालूं तो टीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। ठीक है, डेल्टा टीएफ। और ये सबको पता होगा ये वाली चीज, कि बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री। टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री। तो इन सबकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। तो जैसे ही आप इन सबकी वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे, टीवी नॉट की जगह कितना पुट करोगे, 100, और टीएफ नॉट की जगह कितना करोगे, 0। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, तो इससे हमारा साफ साफ आ जाएगा वैल्यूज क्या निकल के आएगी बेटा, कि गिवन है 100 प्लस डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ, दोनों को प्लस किया है, डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ की वैल्यूज को, इज इक्वल टू 103। ठीक है, तो टीएफ और टीबी दोनों की जगह वैल्यू को पुट किया हमने, तो ये आ गया हम लोगों का 100 = 103। तो यहाँ से डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ ये कितना आएगा बताओ, तो ये कम्स आउट टू बी 103 - 100, मतलब कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। आ गया कि नहीं, बिल्कुल आया। अब आप मुझे बताओ डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, केबी इंटू मोलैलिटी। और ये किसके इक्वल होता है, के एफ इंटू मोलैलिटी, सॉरी, और ये वैल्यू
ठीक है। और ये वैल्यूज कितनी आ गई बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोलालिटी को कॉमन ले ले रहे हैं। तो मोलालिटी आ गया कॉमन, ये आ गया के बी, ये आ गया आपका के एफ, और ये किसके इक्वल आ क्या है, 3 के इक्वल। यानी मोलालिटी की वैल्यू जो है वो आ गई 3/KB+KF। ठीक है, और KB और KF हम लोगों को गिवन है, 1.86 KF है, और KB है 0.52। तो इससे मेरा पूरा का पूरा क्या निकल के आ गया है बेटा, मोलैलिटी। ठीक है, तो इससे मेरा पूरा क्या निकल के आ गया, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी मेरा निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करते ही, बस 2 लाइन का है इसलिए यही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मोलैलिटी इसको सॉल्व करने पे निकल के आ गया 0.63। ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करना पूरा। तो मोलालिटी कितना आ जाएगा, चलो मैं एक बार दोबारा इसको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसको नोट कर लेना पहले बेटे, ठीक है, नोट कर लिया। चलो, अब देखो, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो, समझ में आ जाए सब। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ दोबारा एक बार। तो मोलैलिटी जब आपने सॉल्व किया होगा, मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं सबको पता है, मोल्स, मोल्स अपॉन क्या है, मोल्स हो जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, और 1000 लगाते हैं बस। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है आपका 3 और इसको प्लस किया होगा तो 2.38 के इक्वल। क्या यहाँ से एन नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, एकदम सिंपल सा तरीका है। तो एन निकल के आ रहा है 0.63। अब इन्होंने बोला था मिली मोल्स निकालो, तो मिली मोल्स का मतलब होता है 1000 से और डिवाइड कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 630। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। तो 630 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है 49 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि दो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, वन इज इन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर NaCl, and other is a 2 liter of 0.2 molar CaCl. Then using these two solution, what maximum volume of solution can be prepared having Cl concentration is 0.34 exactly. ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमें साफ साफ बोला है, उसको हम लिख लेते हैं पहले, है ना, कि मान के चलते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन बी x एंड वॉल्यूम CaCl सॉल्यूशन इज y। तो NaCl का जो वॉल्यूम है, NaCl का वॉल्यूम जो है उसको मैं x मान लेता हूँ, और जो CaCl है, CaCl2, उसके वॉल्यूम को मैं y मानता हूँ। तो ये मेरा assumption है, x और y। ठीक है, अब देखो, देन यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। देन मैं बोल सकता हूँ क्या, कि 0.1 इंटू एक्स, ठीक है, 0.1 मोलर है ना, इंटू एक्स, वॉल्यूम इसका मान के चल रहे हैं, प्लस इसके कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू वाई, डिवाइडेड बाई x+y, दोनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.34। कंसेंट्रेशन ही होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो गया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया उसके मोलैरिटी को, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, कंसेंट्रेशन। ठीक है, कंसेंट्रेशन का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिखते हो ना हर जगह, C = N/V, तो वही तो किया है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम को डिवाइड करके लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करो बेटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.24x इज इक्वल टू 0.06y। राइट, तो इसको इक्वेट कर लो, तो x अपॉन वाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/4। और भी से y इज इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4x आ गई है। नाउ फॉर द मैक्सिमम वैल्यू इफ y इज इक्वल टू 2, मान के चलते हैं अगर पूरा मैक्सिमम वैल्यू 2 लीटर दे रखा है, तो अगर y की वैल्यू अगर 2 हो गई तो उस केस में x कितना हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना था यहाँ पे बेसिकली, hence the maximum value of solution that can be prepared is, एक तो हो गया 2, एक हो गया 0.5, तो कितना हो गया 2.5 लीटर मैक्सिमम। तो 2.5 लीटर मैक्सिमम प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई, मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 51, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ
वन मोल ऑफ वाटर टू डाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो वन मोल ऑफ वाटर को डाई ऑक्सीजन में करना है, तो पहले तो रिएक्शन आना चाहिए इसका, जिसको रिएक्शन आता हो फटाफट कर देगा। तो H2 को जब डिकम्पोज करेंगे तो 2H+ मिलेगा, हाफ O2 मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2F का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सिंपल। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए से बेटा, 2F का, और एक F का पता है कितना होता है, 96,500। तो बस 2 × 96,500 कर दो, क्या आएगा, 1.93 इंटू 10⁵ कूलम। तो 1.93 × 10⁵ कूलम, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए आपको डेल्टा जी की वैल्यूज निकालनी है सेल रिएक्शन के लिए। ठीक है। ठीक है। तो देखो, व्हाट इज द वैल्यू फॉर डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। तो हम सबको पता है कि अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं तो डेल्टा जी कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा जी का सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू नथिंग बट एन एफ और ई नॉट सेल, है ना, यही तो फॉर्मूला है। अब देखो क्या क्या पता है, एन इस क्वेश्चन के लिए पता है साफ, जेड एन पे +2 चार्ज है तो -2 हो गया। फेरेडे कांस्टेंट सबको पता है 96,500 होता है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, तो ई जिंक का दे रखा है इतना, एजी का दे रखा है इतना। तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड कितना है, कैथोड जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो कैथोड होता है। तो दैट इज 0.80 माइनस 0.76, तो ये कितना आ गया, 0. कितना आ गया ये, दोनों को निकालो। ये वैल्यूज बेटा माइनस में दे रखी है बेटा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम Zn+2 से Zn कर देंगे, उल्टा कर देंगे हम। ठीक है, हम +2 से Zn कर देंगे, सही दे रखा है वैसे, हमने इसको उल्टा कर दिया बस। ठीक है, टेप माइनस का हो गया, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो प्लस हो गया, कितना हो गया बेटा, 0.86, और ये तो ये प्लस होके हो गया 1.56। तो दिस इज 1.56 वोल्ट। तो यहाँ पुट कर दो 1.56, बस सिंपल सा कैलकुलेशन था। कैसे सॉल्व करोगे, आंसर कम्स आउट टू बी 3.01, 0.8 किलो जूल। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलर मास 108 ग्राम दे रखा है, CHN प्रेजेंट है इस रेशियो में। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज। तो एक्स और वाई का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है आपको। तो आपको दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इनका इन सबका ना अगर आप देखो तो आप कैसे निकाल सकते हो, फिर प्रेजेंट इन द वेट, वेट दे रखा है, यानी कार्बन का वेट है 9, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सबको पता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 1, ये रेशियो निकल रहा है, देखो कितने से अच्छे तरीके से निकल रहा है। नाइट्रोजन का वेट कितना दे रखा है 3.5, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 7। ठीक है, 3.5 होता है, और कितना दे रखा है, नाइट्रोजन N2 की बात कर रहा है ना, तो 14 ले लो बेटा, 14। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास ले रहे ना, तो 14 ले लिया हमने, तो 12 1 1 14। तो ये कितना आ गया मोलर रेशियो बताओगे। तो ये मोलर रेशियो हम लोगों का कितना निकल के आ गया बेटा, 3 3 9 3, यानी ये हो गया 3/4 रेशियो 1, रेशियो 1/4 अप्रोक्स। ठीक है, तो यानी ये कितना आ गया फॉर्मूला, C3H4 और एन आ गया है, दिस इज द इम्पैरिकल फॉर्मूला। बहुत सिंपल तरीके से निकाल दिया, क्या निकल गया, ये इम्पैरिकल फॉर्मूला। नाउ हमें सबको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, दैट इज एन इंटू इम्पैरिकल फॉर्मूला, एन इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू आएगी 2। कैसे एन की वैल्यू 2 आएगी भाई, देखो एन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास, जो कि दे रखा है 108 डिवाइडेड बाई इम्पेरिकल फॉर्मूला इसका मास, तो ये इसका मास कितना आता है 54, तो ये कितना आ गया बेटा 2। तो दिस इज 2 इंटू C3 इंटू H4 इंटू एन, तो दिस कम्स आउट टू बी C6H8N2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है 6, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 6, तो x बाई वाई निकालना है ना, तो x की वैल्यू 6 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, y की वैल्यू आ रही है 2, तो 6/2, दिस कम्स आउट टू बी 3, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था बेटा 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलो चलो नेक्स्ट चलें। देख,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है? 1.22 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज सेपरेटेड सेपरेटली डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, केबी दे रखा है, एंड 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, इसका केबी दे रखा है। द एसिड इज नोन टू डाइमराइज इन बेंजीन बट रिमेन अ मोनोमर इन एसीटोन। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इन एसीटोन इंक्रीज बाय 0.17 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन बेंजीन? ठीक है, आपको ये बताना है। देखो, हम सबको पता है कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, बेंजीन जब सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। वैल्यू बताओ भाई। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है, क्योंकि डाइमराइजेशन बोला है। और के बी कितना है? 2.6। मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकला होगा? मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है क्या? 1.22 ग्राम बिल्कुल गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूट 1.22 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कुछ था इसमें दे रखा है। तो बोला था ऑर्गेनिक एसिड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता, उसको हमें निकालना है। इनटू क्या होता था? 1000। और मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन हमारा एक वन बन गया, बन गया। उसी तरीके से डेल्टा टीबी, ये किसके लिए डेल्टा टीबी था बेटा? जब बेंजीन की बात हो रही थी। ठीक है, बेंजीन, भूलना नहीं। और अब मैं बात कर रहा हूँ एसीटोन के लिए। तो एसीटोन के लिए फॉर्मूला क्या बना? बताओ। तो सिंपल, आई इज इक्वल टू 1 हो गया, बिकॉज बट रिमेन मोनोमर इन एसीटोन, एसीटोन में मोनोमर है, एकदम सेम है। तो 1 हो गया। के बी 1.7 हो जाएगा, और ये लिखो 1.22 ग्राम। इसका भी मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, ये तो 1000 ही रहेगा, और ये भी 100 का 100 ही रहेगा। नाउ ये 1 और 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है, डेल्टा टीबी, और इसको डिवाइड करो। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, और इसको नाम दे देता हूँ 2। तो दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, 1 को डिवाइड कर दो 2 से। तो डेल्टा टीबी 1 को डिवाइड किया डेल्टा टीबी 2 से। ठीक है, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे देखो, जो जो आ रहा है उसको लिखो फटाफट। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2.6 इंटू 1.22 मॉलिक्यूलर मास था, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, यही था ना? पूरा ऐसे लिख दिया मैंने। और इसके डिवाइड में क्या था? दैट इज 1 इंटू 1.7 इंटू 1.22 इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। ठीक है, ये सब आ गया। तो यहां से देखो, इस टीवी टू की वैल्यू गिवन है 0.17। तो क्या बेटा, आप डेल्टा टीवी की वैल्यूज कैसे निकालोगे? एमडब्ल्यू से तो एमडब्ल्यू कैंसिल हो गया, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो गया। तो क्या डेल्टा टीवी वन नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो डेल्टा टीवी वन कितना आया? 0.26/2। यानी ये वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे पास कितनी आ गई है? दैट इज 0.1613। और इसको वैसे लिखना है अगर आपको, तो लिखोगे 13 × 10⁻²। तो 13 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा था सिर्फ एक्स बताओ, तो एक्स 13 हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 55? Assuming that the sea water is 3.5 degree mass by aqueous solution of NaCl. If the molality of sea water is X, then find the value of 100x। सिंपल सी कहानी है। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, यानी W कितना गिवन है बेटा? 3.5 ग्राम। ठीक है, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया? 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ गया 96.5, 100 में से माइनस कर दिया ना। अब मोलैलिटी तो निकालना है, तो मोलैलिटी क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 3.5 ग्राम, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा वही तो नहीं पता, इनटू 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 96.5 ग्राम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये गिवन है क्या मॉलिक्यूलर मास? NaCl की बात हो रही है क्या? NaCl ना, तो ये भी गिवन है, दैट इज 58.5, तो निकाल दोगे आराम से। सो मोलैलिटी कम्स आउट टू बी 0.620। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ 100x पूछा है, तो कैसे लिखोगे? 0.620 इंटू 100, सो इट कम्स आउट टू बी 62। ठीक है, तो 62 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या बोला है। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी C6H6। ठीक है, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी C6H6 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का आपका दे रखा है, हीट ऑफ एटमाइजेशन कार्बन का भी दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी सबका दे रखा है।
आपको पूछा है कि कैलकुलेट द, आप मुझे एनर्जी बताओ। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम समझाता हूँ कि हमें बनाना क्या है। देखो 6C+3H2 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, C6H6। ये इसका हो गया डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो ये ऐसे भी तो बन सकता है, बेंजीन ही तो बनाना है ना। डेल्टा एच, ठीक है। ये डेल्टा एच में हमारा हो गया, फॉर्मेशन का दे रखा था ऑलरेडी, हाँ ठीक है। तो ये हो गया एक हम लोगों का, है ना। अब देखो डेल्टा HF1 कैसे कैसे बन रहा है, ये बेंजीन जो बनाना है हम लोगों को, तो कैसे कैसे हो रहा है ये। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा HF फॉर्मेशन पहले तरीके से, तो क्या लिखूंगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी कितना है भाई, 6 इंटू, वैल्यू दे रखी है ना, 716, 716.8, ठीक है। +3 इंटू इसका दे रखा है 436.9। ये तो सिर्फ रिएक्टेंट हो गया, माइनस प्रोडक्ट साइड आ जाओ। तो प्रोडक्ट साइड क्या है, 3 इंटू 620 प्लस +3 इंटू 340 +6 इंटू 490, सारी वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे डेल्टा HF1 आप कैलकुलेट करो कितना आ गया, इट्स कम्स आउट टू बी -20.85 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमारा ये डेल्टा HF1 निकल के आ गया है। ठीक है। अब देखो जो डेल्टा HF1 आया है, और ये जो है डेल्टा HRE, डेल्टा HRE, ये इक्वल है डेल्टा HF0 के। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, -208.5 जो अभी भी निकाली है, प्लस डेल्टा HRE, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी रखी है 358.5। तो यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आई, 150 किलो जूल पर मोल। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। क्लियर है क्या सबको, जल्दी बताओ। हम्म। चलो फटाफट, अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसको भी जल्दी से करते हैं फटाफट। क्या बोला है, बोल रहा है कि when the electricity is passed through the solution of AlCl3, 13.5 gram of Al is deposited, the number of Faraday must be x, then find the value of 2x। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Al+3 में है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा Al में कन्वर्ट होने के लिए। तो हमें पता लग गया ये 3f है ना, कितना चार्ज आ गया, 3f है। तो मोल ऑफ एल कितना आ जाएगा, देखो। तो मोल निकालूं तो कितना है, 13.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास होता है 27। तो 13.5 × 27 तो 1/2 हो गया, 0.5। तो क्या कर दो इसमें, 0.5 × 3, तो कितना आ गया, 1.5 f। तो 1.5 f आएगा बेटा, ठीक है। सो द x इज 1.5 f। तो 2x कितना होगा, 2x पूछा है, तो 2x कितना हो जाएगा, दैट इज 3f। तो 2x की वैल्यू हमारी आ गई 3f, हमें 1x आया ना 1.5f, यहाँ पूछा 2x बताओ क्वेश्चन में, तो 2x हो जाएगा 3f। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा 3f। नाउ अब पूछा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, कि एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेटिक इज फॉर 8 मिनट्स यूजिंग अ 2 एम्पियर करंट एज पर द डायग्राम, द अमाउंट ऑफ क्रोमियम ऑब्टेन्ड वाज दिस ग्राम, द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज। आपको एफिशिएंसी बताना है इस प्रोसेस का, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, पहले ये देखो। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल सा यहाँ पे निकल के आने वाला है, वो क्या है, कि कितना सीआर ऑब्टेन्ड हुआ है ना, अपॉन उसको डिवाइड कर देंगे जितना हम निकाल रहे हैं। ठीक है। यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको निकालता हूँ फिर आपको फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज रखते हैं। सबसे पहले बताओ मेरे को यहाँ पे सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स हैं। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना यूज हो रहा है, ध्यान से देखो, दैट इज 8, राइट। क्यों यूज, अगर आप ध्यान से अगर देखो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 8 × 60, एंड कितने के लिए बोला है, 2 एम्पियर के लिए, ठीक है। तो 2 एम्पियर डिवाइडेड बाई 96,000,
ये तो ये हो गया सिंपल। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर साइड में रिएक्टेंट के साइड देखो तो 6, और उधर साइड कितना बन रहा है क्रोमियम का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट इज 2। तो अगर यहाँ पे आप सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम +3 का ही देखो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2/6 × 8 × 62 और डिवाइडेड बाई 96,000। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग को ऑलरेडी दे रखी है। तो वेट ऑफ क्रोमियम थ्योरेटिकल प्रोड्यूस कितना होगा, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 0.02 डिवाइडेड बाई 6 इंटू पूरे को सॉल्व किया तो कितना आया, 52। ठीक है, ये पूरे को जब सॉल्व किया था ना बेटा, तो ये आ गया था 0.02 डिवाइडेड बाई 6। तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया है हम लोगों ने 52 ग्राम से। ठीक है, क्रोमियम की बात हो रही है। तो ये कितना निकल के आ गया। अब आप क्या करो, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी के लिए एक्चुअल डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल, एक्चुअल डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल इंटू 100, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो एक्चुअल दे रखा है 0.104 ग्राम, और ये वैल्यू थ्योरेटिकली कितना है, 0.02 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम। बस इसी को सॉल्व करना था बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100 करके। तो जो एफिशिएंसी है वो कितनी परसेंट आ रही है, 60%। ठीक है, तो एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी 60%। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आ गया होगा व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग बेसिकली, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दिस। सो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आई होप यू लाइक द वीडियो। हमने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वहां पे फिर हम नेक्स्ट अपने पेपर के साथ मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।